Hello everyone. Today we are going to learn Unit 1, Standard 5th in the subject English. Unit 1 that is divided into the two parts. One is the poem and second is the story. First of all, we are going to learn the poem Ice Cream Man. Nowadays, as you know that the summer season is going on. In the summer season, we just used to change our food habits. Generally, we used to prefer the cold drinks, ice creams, etc. This kind of food items we used to have in this season. So now let us see the poem. What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? Now we know very well, we all are just fond of ice cream. So here they have asked a simple question that what is cold? Means ठंडा क्या है? Sweet means मीठा, creamy means smooth and soft. तो ऐसा क्या है? What is that? But obvious that is the ice cream, and that is the favorite of all the children as well as all the age group people. On a hot summer day is an ice cream, and everyone's favorite person might just be the ice cream man. And but obvious that just whenever we see any ice cream man, at that time just we feel happy because we all are just fond of ice cream. When summer in the city and the bricks a blaze of heat means जब भी summer season होती है, whenever there is a summer season in the streets, at that time all the streets are fiery. Blaze means bright flame of fire. मीन्स जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पूरा जो मोहल्ला जो गलियाँ होती है वो एकदम गर्मी से एकदम गर्म हो जाती है, गर्म हवा आती है. एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार. उस वक्त आइसक्रीम अपने छोटे से कार लेकर गलियों में आता है. जस्ट ही एंटर्स इनटू द स्ट्रीट्स विद हिज लिटिल कार. गोज टनलिंग डाउन द स्ट्रीट. Tunneling means moving on small broad wheels. means छोटा जो कार होता है वो. तो समर सीजन में जब मोहल्ले शेरियाँ जब बहुत गर्म हो जाती है, वहाँ की जो दीवारें होती है वो भी एकदम गर्म हो जाती है और गर्म हवाएं फेंकती है. उस वक्त जब ये आइसक्रीम मैन अपनी छोटे से कार लेकर आता है, beneath his round umbrella, तभी जैसे ही वो as soon as just he comes with his small car, at that time all the children, those who live in that street, they come to the ice cream man and they stand beneath umbrella. Beneath means under the umbrella. जब ये आइसक्रीम मैन आता है तो उसकी कार्ट पे एक मल्टी कलर अम्ब्रेला होती है और उसी अम्ब्रेला के नीचे सभी बच्चे जमा हो जाते हैं. मीन्स इन अ क्लस्टर मीन्स gather around. Oh, what a joyful sight! And really, this kind of sight is very joyful. When I was a kid at that time, I was enjoying the same thing. One iceman, he used to come to our street. At that time, he did not say anything, but instead of that, just he used to ring the bell, and by the sound of the bell, we understood that yes, the iceman is there. So we just immediately rushed there to have the ice with the different colors. So that same situation is here in this poem. That whenever the ice cream man comes to the streets, at that time all the children go to the ice cream man and just stand under the umbrella of that car and they just enjoy the different kinds of ice creams. What kind of ice creams are there? Let us see. To see him fill the cones with mounds. माउंट्स मीन्स हीप और पाइल. जो कौन होता है आइसक्रीम का, उसके ऊपर एक स्कूप डाल के जो आइसक्रीम डालते हैं उसे हम माउंट कहते हैं इंग्लिश में. तो माउंट मीन्स हीप पाइल. तो जब भी वो आइसक्रीम में अपने कौन में आइसक्रीम भरता है तो वो जो साइड होती है बहुत अद्भुत होती है, सबको वो पसंद आती है क्योंकि वो जो आइसक्रीम भरता है उसके बाद हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं. रिलेटिवली यूज्ड टू ईट. Of cooling brown pie, vanilla, chocolate, strawberry. Okay, these are the different flavors he used to bring with him. Vanilla, chocolate, and strawberry. तरह इस तरह के flavors आइसक्रीम मैन अपने साथ लेकर आता है. और chili things to bring. And also not only ice cream but also he used to bring some chili things like cool drinks from bottles full of frozen fish.
पीस, अपने पास जो बॉटल्स होती है उस बॉटल्स में वो फ्रॉस्टी पीस मींस चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड। तो बॉटल में अलग अलग कलर के वो कोल्ड ड्रिंक्स आता है और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो भी उसके जो कलर होते हैं ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो 4 अलग अलग कलर के फ्रॉस्टी पीस वो लेकर आता है बॉटल्स में, वो है ग्रीन, ऑरेंज, वाइट एंड पिंक। दिस कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। जब भी हम उसकी कार्ट मीन्स जो वो लेके आता है अपनी कार्ट ठेला, तो वो एक फ्लावर बेड की तरह दिखती है। क्यों फ्लावर बेड की तरह दिखती है? सी ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस दे द वे चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड। तो जब भी वो अपने कार्ट के ठेला लेके आता है उस वक्त जैसे बच्चे उस कार्ट के आसपास जमा हो जाते हैं और अलग अलग वैरायटीज की आइसक्रीम खाते हैं, तो वो जो दृश्य होता है, वो जो सिनारियो होता है, वो एक फ्लावर बेड की तरह दिखता है। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड of roses and sweet peas, the way children cluster around as thick as honey bee. तो हनी बी की तरह वो क्लस्टर में एक साथ जो कार्ट के आसपास हो जाते हैं। तो ये थी पोएम आइसक्रीम मैन। अब हम चैप्टर यूनिट 1 स्टोरी लर्न करने जा रहे हैं। वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। जनरली हम अपने घरों में हम जो भी वेस्ट होता है वो हम थ्रो डस्टबिन में फेंक देते हैं कि भाई ये किस काम का है, इट इज नॉट यूजफुल, सो बाय थिंकिंग दैट वी यूज्ड टू थ्रो इट इनटू द डस्टबिन, बट नो, ऑल द थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। सम ऑफ द थिंग्स आर वेस्ट बट दे कैन बी यूजफुल इन अ डिफरेंट वे। सो नाउ लेट अस सी दैट in this story that how the waste are useful in a different way. So once the Maharaja of Travancore, in the ancient time Kerala was known as Travancore. So once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. बहुत साल पहले ट्रैवनकोर नाम का एक राज्य था, वहाँ का जो राजा था महाराजा एक दिन रात्रि भोज मीन्स डिनर ऑर्डर करता है अपने कुक को। उस दिन उन्होंने कुछ अपने मित्र को स्पेशल डिनर के लिए बुलाया था। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन। अब शाम को जो डिनर था उसकी तैयारी जो कुक था उसने दोपहर से शुरू कर दी थी। तो कुक कैसे खाना बनाता है, क्या खाना बनाता है, ये सब सर्वे करने के लिए, देखने के लिए महाराजा किचन में जाते हैं। किचन में जाते ही उन्होंने देखा कि द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, कौन कौन सी डिशें बना रहा है, ये सब सर्वे करने के लिए महाराजा वहाँ पे पहुँचते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस वेजिटेबल स्क्रैप्स? तो जब भी महाराजा वहाँ जाते हैं तब वो देखते हैं कि अच्छे जो वेजिटेबल्स से यूजफुल थे वो कुक ने यूज में ले लिए थे और उसका जो वेस्ट था साइड में उसने रख दिया था। तो महाराजा ने जब भी ये देखा तो उसने पूछा, he asked to the cook that what are you going to do with this vegetable scrap? ये जो वेस्ट है वेजिटेबल का, तो उसका तुम क्या करने वाले हो? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, तो तभी वो जो कुक था उसने जवाब दिया, they are waste, तो वो किसी काम के नहीं है, we will throw them away, तो हम लोग उसे फेंक देंगे। जब महाराजा ने पूछा तो कुक ने आंसर दिया, कुक मीन्स जो खाना बनाता है उसे कुक बोलते हैं, तो कुक ने आंसर दिया कि ये वेजिटेबल बनाने के बाद ये सब वेस्ट है, इसका कोई यूज ही नहीं है, तो हम लोग ये सब डस्टबिन में फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. तब भी महाराजा ने आदेश दिया कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है आपको फेंकना नहीं है, किसी भी तरह से उसका यूज करो और कोई भी रास्ता अपनाओ, कोई भी नई डिश बनाओ, लेकिन उसे फेंकना नहीं है। ऐसा बोल के महाराजा वहां से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स, तो कुक तो वैसे ही इन अ फिक्स मीन्स देयर वॉज नो वे टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इन अ फिक्स। तो कुक तो सोचता ही रह गया कि अब मैं क्या करूं, महाराज ने तो ऑर्डर दे दिया कि ये वेजिटेबल स्क्रैप्स है, ये फेंकना नहीं है, उसका यूज करना है, कैसे यूज है उसका यूज करना है। तो वो एकदम फिक्स हो गया है
कि सिचुएशन से वो भाग भी नहीं सकता था, कैसे भी उसे वेजिटेबल स्क्रैप का यूज करके कुछ भी बनाना था। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. तो थोड़ी देर के लिए तो वो वेजिटेबल स्क्रैप के सामने देखता ही रहेगा कि अब मैं क्या करूं, महाराजा ने ऑर्डर दिया है तो मैं क्या करूं, ये फेंक भी नहीं सकता। तो थोड़ी देर तो वो सोचता ही रहेगा। Suddenly an idea flashed across his mind. थोड़ी देर के बाद अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। He took all the vegetable bits. तो सब्जी के जो भी स्क्रैप्स थे उसने वो जो कुक था उसने ले लिए, वॉश देम एंड क्लीन देम। उसने जो वेस्ट था वेजिटेबल का वो सब ले लिया, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया और उसके बाद देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े पीस में उसको काट दिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उसने वो सभी वेजिटेबल्स स्क्रैप्स जो थे अच्छी तरह से धो लिए, उसके बाद उसको स्ट्रिप्स में काट लिया। उसके बाद उसने एक बड़ा सा पॉट लिया और वो पॉट जो था उसने एक फायर टू कुक मींस चूल्हा जलाया और उस पर मटका रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। उसके बाद उसने थोड़ा फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च एंड गार्लिक, लहसुन, ये सब एक साथ ले लिया और ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। तो उसने गार्लिक, हरी मिर्च और फ्रेश कोकोनट ये सब लेके वो जो बड़ा पॉट था उसमें रख दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट, और उसमें थोड़ा सॉल्ट मींस नमक भी उसने डाला। किस लिए? तो वो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उसे कुक करने के लिए। A tempting smell means very delicious smell started coming from the pot. थोड़ी देर के बाद उस pot smell से बहुत delicious smell आ रही थी, जिसकी स्मेल से सब लोगों को खाने की इच्छा होती है, उसे बोलते हैं tempting smell. He also poured a few spoonfuls of coconut oil. Now he whipped some curd. फटा हुआ दही लिया उसने, वो भी उसने उस pot के अंदर मिक्स किया into curry, वो जो करी उसने बनाई थी उसमें मिक्स किया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil. उसने कुछ चम्मच, स्पूनफुल मींस चम्मच भर के, कुछ चम्मच भर के उसने कोकोनट ऑयल लिया और डेकोरेट द डिश विद द करी लीव्स। और उसने पूरा जो डिश था वो करी लीव्स मींस कड़ी पत्ता होता है उससे उसने डेकोरेट किया। लो एंड बीहॉल्ड मींस लुक व्हाट अ सरप्राइज। और वो बनाने के बाद वो सब सरप्राइज हो गए कि पहले तो वो वेजिटेबल स्क्रैप था लेकिन उसमें से भी ऐसे डिलीशियस डिश बन गई। तो लो एंड बीहोल्ड मींस लुक व्हाट अ सरप्राइज। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट। ये जो कुक ने नई डिश बनाई है तो जितने भी गेस्ट थे तो कुक ने उसे सर्व किया मींस परोसा उस शाम को। Everyone was eager to know the name of the new dish. सभी जितने भी गेस्ट वहाँ पे आए थे, जिसने भी ये डिश खाई तो वो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि ये जो आइटम कुक ने बनाई है तो उसका नाम क्या है, क्योंकि सब लोगों को ये जो बनाया था वेजिटेबल्स के अंदर वो बहुत पसंद आया था। So everyone was eager to know the name of the new dish. तो सबको बहुत इंतजार थी कि ये जो नई डिश बनाई है कुक ने तो इस नई डिश का नाम क्या है। The cook thought and thought. तो उस वक्त वो जो कुक था वो सोचता रहा और अचानक then a name came to his mind. अचानक उसके माइंड में एक नाम आया और वो जो नाम था he named it avial. तो उसने उस डिश का नाम दिया avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. और ये डिश का नाम avial जो दिया तो पूरे केरला में इतनी फेमस हो गई कि जब भी कोई सेलिब्रेशन होता था तभी वहाँ के लोग ये अवियल बनाते ही थे। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और आप इमेजिन करो कि ये सब कहाँ से आया, जो वेस्ट था उसमें से ही आया। तो मित्रों ये याद रखिए कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन नहीं उसका भी कुछ यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ये लेसन कंक्लूड करूँगा।